स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन लेसन पढ़ा है, एंड इन न्यूट्रिशन लेसन यू हैव सीन दैट कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल में बदल दिए जाते हैं। जैसे जो भी आपने पॉलीसेकेराइड्स खाया था, कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, दैट वाज बीन ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फूड व्हिच वाज बीन कॉल्ड एज द व्हाट, ग्लूकोज। नाउ ये जो ग्लूकोज है विच इज अ स्टोर्ड एनर्जी, ग्लूकोज इज द स्टोर्ड एनर्जी. Now this glucose has to be converted into the usable energy. अभी देखो दो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, एक एनर्जी को मैं बोल रही हूँ नॉन यूजेबल एनर्जी और दूसरे एनर्जी को मैं बोल रही हूँ यूजेबल एनर्जी. अभी दोनों में फर्क क्या है? नॉन यूजेबल एनर्जी मतलब हो गया अपना ग्लूकोज. नाउ ये जो ग्लूकोज है जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बना है, दैट इज बीन स्टोर्ड इन अवर बॉडी, और जब भी ये ग्लूकोज एटीपी में बदलेगा तो उसको हम बोलेंगे यूजेबल एनर्जी. So I hope you have got the difference between the usable and the non-usable energy. Usable energy is ATP and non-usable energy is nothing but the glucose or the glycogen which has been present in our body, which has been formed by the process of digestion. Okay. Now let us begin with this topic. So as I've told you, respiration is the formation of ATP. So what is the equation which has been given on the screen? Glucose, that is C6H12O6, plus oxygen. With oxygen, it forms carbon dioxide and the water vapor. With that, there are 38 ATPs which are been formed. 38 ATPs are formed. Very clear? Now, here you can see one difference as there are oxygen been involved. But when we talk about respiration in brief, there are two types of respiration in which there is involvement of oxygen and where there is not involvement of oxygen. So comes the types of respiration as the anaerobic respiration and the aerobic respiration. Anaerobic respiration, this can be asked in the exam, and the points which I have underlined or highlighted are the very important point which can be asked for MCQ in the board exam. So please jot down the important things. I hope you are ready with the paper and the pen, so to note down the important things. सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है. Jot down भी important points करना है because I will be asking you questions in between. Clear? Now, anaerobic respiration and aerobic respiration. As the name suggests, anaerobic respiration का मतलब होता है which takes place in absence of oxygen. Absence of oxygen. Whereas aerobic का मतलब है which takes place in presence of oxygen. So let me check whether you know. अभी जो सामने equation मैंने दिया है, that means whether it is aerobic or anaerobic. Yes, so it is a aerobic type of respiration क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है. समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होती है. इट प्रोवाइड्स वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. Whereas जब भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत सारी एनर्जी मिलेगी. अब मैं आपको थोड़ी और बहुत ज्यादा बोलूंगी तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. लेट मी टेल यू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs are formed. 38 ATPs are formed. Clear? Now, again, when we talk about the anaerobic respiration, it takes place inside the cytoplasm. Cell के cytoplasm के अंदर होता है. Now, this question can be asked for MCQ in the board exam. Whereas the aerobic respiration takes place, the part of it takes place inside the cytoplasm and the major part takes place inside the mitochondria. Yes, ये याद रखो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मेजर पार्ट. You have learned about the Krebs cycle, ETS, correct है?
तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी का जो क्रेब्स साइकिल और ईटीएस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट अगेन हम एनारोबिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे देर में और मे नॉट बी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, it releases carbon dioxide. Again, this is a major difference between the two. Now let us see how there is not involvement or not release of this CO2. कैसे नहीं होता है? तो एग्जाम्पल से हमें ये चीजें, ये पॉइंट हमें समझ में आ सकता है। What is this yeast? Yeast is been used in bakery products, जैसे पाव बनाना हो गया, ब्रेड बनाना हो गया, ये सभी चीजों के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है कि जो ये पाव होता है और ये जो ब्रेड होता है, दे आर वेरी फ्लफी, सॉफ्ट होता है कि नहीं? तो सॉफ्ट किसके कारण होता है? बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ईस्ट जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन करेगा वो CO2 रिलीज करता है, जिसके कारण इडली बोलो या कोई भी चीज, फर्मेंटेड चीज बोलो, वो फ्लफी होती है। बट जब हम मसल्स की बात करेंगे, अब देखो आप बहुत ज्यादा एक दिन एक्सरसाइज करो, हाँ सर ने डीजे लगा दिया तो अब इतना इतना डांस करोगे, इतना डांस करोगे, बट उसके नेक्स्ट डे क्या होगा? द वेरी नेक्स्ट डे यू विल हैव अ सीवियर पेन इन योर मसल्स। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि अपने मसल्स के अंदर भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वेरी क्लियर? बिकॉज अगर आप ज्यादा काम करोगे तो अपना मसल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी को पूरा करने के लिए वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। और जब अपना मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिगरस मसल वर्क। So what will happen? Because of this lactic acid deposition, there is a pain which we feel the next day. चलो अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो ब्लड सेल्स है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और द रेड ब्लड सेल्स। वी नो दैट अपने ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब एक्चुअली 3 हैं। दे आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। ये सब चीजें आप सर्कुलेशन लेसन में पढ़ोगे, बट जब अगर मैं एनेरोबिक की बात करूंगी तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो अपना आरबीसी है ना, इट इज विदाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्योंकि अपने आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, इसके लिए यस आरबीसी के अंदर भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एस्केरिस, यस एस्केरिस इज अ राउंड वर्म, ये आपने किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा हुआ है। एस्केरिस इट्स अ राउंड वर्म व्हिच रिसाइड्स इन आवर इंटेस्टाइन, करेक्ट है? सो ये इंटेस्टाइन में अपने रिसाइड करता है, अगेन इट डूज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। I hope you have got the difference. So anaerobic मतलब presence of absence of oxygen, aerobic मतलब की presence of oxygen. anaerobic में सिर्फ 2 ATP फॉर्म होगा, जबकि aerobic में 38 ATP फॉर्म होगा। एनेरोबिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, whereas एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट, that is glycolysis, to be very specific, glycolysis takes place inside the cytoplasm, whereas the Krebs cycle and the ETS, which you have already learned in 11th standard, that takes place inside the mitochondria. Now in anaerobic there may or may not be release of carbon dioxide, but in aerobic respiration there is always the release of carbon dioxide. Very clear? And you have seen all the examples for the same. Now let us move on to the next part. This is the textbook definition which has been given. I've written on the screen. This is a textbook definition. It is a biochemical process. Yes, biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of ATP. Now in board exam, whenever there is a definition been asked, it is always expected to write the textual definition. आपको हमेशा textual definition ही लिखना है for the board exam. Again the same reaction which we have discussed just now. Now, when we talk about respiration in detail,
So there is an exchange of gas which is taking place, है ना, जिसको हमने ब्रीदिंग बोला. एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में होता है? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में होता है. ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, विच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अच्छा, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है वो जगह को क्या बोला जाता है? respiratory surface. Again can be asked for 1 mark question or MCQ in the board exam. So the site of gaseous exchange is called as a respiratory surface. When we talk about respiratory surface, let us talk something about the plants also. कि प्लांट में कैसे होता है? प्लांट में क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? तो आंसर इज हाँ, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं. फिर आप बोलोगे अरे प्लांट के पास तो नोज ही नहीं होता है, तो फिर वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो प्लांट के पास भी ओपनिंग्स होते हैं. तो वो ओपनिंग का नाम क्या है? तो वो ओपनिंग का नाम है स्टोमाटा. यस, when we talk about the leaf ka, you can see the lower epidermis of the leaf. The lower epidermis, I have this, the diagram is of the TS of leaf. ये ऊपर का एपिडर्मिस है और ये जो है ये नीचे का एपिडर्मिस है. तो जो नीचे का एपिडर्मिस है, you can see small pores or the openings present over here. ये जो पोर्स और ओपनिंग्स है, इसका नाम क्या है? स्टोमाटा. स्टोमैटल पोर भी बोल सकते हो आप, या फिर इसको स्टोमाटा भी बोल सकते हो. बायो में पोर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग. ठीक है. तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा. अगेन कैन बी आस्क्ड फॉर अ 1 mark क्वेश्चन और द एमसीक्यू. सो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर लीफ के लोअर एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. और ये स्टोमाटा क्या हो गया? अभी हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सरफेस पढ़ा था. तो प्लांट का रेस्पिरेटरी सरफेस अभी हमने क्या पढ़ा? इट इज द स्टोमाटा. ठीक है. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमाटा ही है. अगर समझो स्टोमाटा नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर कुछ वुडी फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके पास, ये देखो उसका बार्क है. बार्क मीन स्टेम. बार्क में छोटे छोटे पोर्स आप देख सकते हो, व्हाइट कलर के. दिस पोर्स, छोटे छोटे पोर्स और होल्स आर कॉल्ड एज लेंटिकल्स. ये लेंटिकल्स भी हैं जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाता है इन केस ऑफ प्लांट्स. तो अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूंगी तो 2 ओपनिंग्स के बारे में हमने बात किया. एक है स्टोमाटा और दूसरा क्या है? लेंटिकल्स. स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स आर द respiratory surface. They are the respiratory surface for the exchange of gas in case of the plants. So I hope you have noted down. In plants they are stomata and the lenticles. Now let us know about the features of this respiratory surface. कि कोई भी respiratory, अभी हमने respiratory surface से जान लिया, पहले आप उसके बारे में जानते हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए. तो ये 3 फीचर्स है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ 1 mark question in the board exam. ठीक है. What are the features of respiratory system? So the very first point is, you can see I've underlined over here, it should have a large surface area. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाएगा. Yes, so it should always have a large surface area. Then it should be very thin. क्यों thin होना चाहिए? क्योंकि thin होगा तभी तो गैस का एक्सचेंज हो पाएगा. Plus it should be highly vascular. Vascular का मतलब क्या होता है? Rich in blood supply. ठीक है. So it should be highly vascular also. At the same time, when it is satisfying all these 3 conditions, it should be moist also. It should not be dry. So making it moist, कोई भी जो respiratory surface होता है, it is lined by the mucous membrane. Yes, उसको moist condition में रखने के लिए it is always lined by the mucous membrane. वेरी क्लियर. ये सारी चीजें हम डिटेल में ये लेसन में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ये 4 चीजों को याद रखो कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस के ये 4 फीचर्स होने चाहिए.
सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, रिच इन ब्लड सप्लाई होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए. Now, let us talk about some evolution point of view. Let us say some evolution कि अलग अलग organism है. When we talk, there are different types of respiratory surface. अभी अगर हम एनिमल्स को देखेंगे तो देर आर वाइड वेराइटीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस और द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एनिमल. मम्मी तो है पण दिलेत का हे बघ. बेटा कोई तो है जिसने प्लीज ये करो आवाज. आई डोंट नो हु इज स्पीकिंग. प्लीज अनम्यूट करो. स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट. हेलो सर. पिशवी कौन है जो पिशवी और मम्मी को बुला रहा है? प्लीज म्यूट इट. See beta, if you are not interested you can move out because it is disturbing other children's also. Okay, so come back children's. I was talking about in the animals there are wide varieties of respiratory surface or the organs present. Okay, now it differs in various animal. अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस है. क्यों? डिपेंडिंग अपॉन देयर सराउंडिंग और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. वो जो सराउंडिंग में रह रहे हैं उसके अनुसार उनका रेस्पिरेटरी सरफेस भी अलग अलग होता है. तो कैसे? लेट अस सी. अगर हम अर्थवर्म की बात करेंगे तो अर्थवर्म के पास तो एक्सोस्केलेटन होता ही नहीं है, उसका स्किन एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है. वैसे ही फ्रॉग का बात है, फ्रॉग के पास भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता, स्किन एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है. सेम थिंग विद द फ्लैटवर्म. सो इन सभी एनिमल्स के अंदर स्किन इन्वॉल्व होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस. व्हेन स्किन इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैस, that type of respiration is called as dash. What? It is called as cutaneous respiration. Children, you can tell me the answers in the chat. Okay, so it is called as cutaneous respiration. So I can see that you all are active. Okay, again I am repeating, when skin is involved in the respiratory as a respiratory organ, then that is called as a cutaneous respiration. When we talk about insect, अभी insect में कॉकरोच के बारे में तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं 11th में. आपने कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा हुआ है. तो उनके अंदर क्या होता है? ट्रेकिया होता है. So when trachea is involved in respiration, it is called as a tracheal respiration. Next, when we talk about the aquatic animals like the fish, प्रॉन्स भले ऑर्थ्रोपोडन है बट वो पानी में रहता है. व्हाट इज दिस टैडपोल? टैडपोल इज द बच्चा ऑफ दिस फ्रॉग, है ना. लार्वे ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड एज अ टैडपोल. तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो फ्रॉग है ये तो एम्फीबियन की कैटेगरी में हम डालते हैं, पर ये जो टैडपोल है उसको हम एक्वाटिक की कैटेगरी में डालते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जिनके लार्वल और अडल्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ऐसे कंडीशन को हम बायो में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ मेटामॉर्फोसिस. नोट डाउन, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मींस व्हाट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोला जाता है when there is a drastic difference between the larval and the adult condition. ठीक है, तो चलो इसके साथ मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया. Now come back to the topic once again. So fish, prawns and tadpoles, as they are living in water, so they are having gills for respiration. अगर gills होगा respiration के लिए तो हम उसे बोलेंगे bronchial respiration. यहाँ पे spelling mistake है बेटा, BRA है हाँ यहाँ पे. So that is called as a bronchial respiration. Okay, चलो अगर हम higher vertebrates की बात करेंगे जैसे कि हम सब, so when lungs are involved for respiration, so that will be called as the pulmonary respiration. Pulmonary respiration. There are other respiratory organs also we can see. Book lungs in case of scorpions or spiders.
book gills in case of arthropodon called as the limulus, pulmonary sac in case of the molluscans. ठीक है, चलो, it's a question for you all. See this, you can see it's a flatworm. So flatworm के अंदर क्या होगा? Which type of respiration? अच्छा, आई थिंक सो मान्या इज आस्किंग मी, मैम आप नोट्स भेजोगे? पहले बेटा आप समझ लो नोट्स, तो आप खुद ही बना पाओगे, ठीक है? स्क्रीन आई डोंट थिंक सो कि किसी को छोटा दिख रहा है. हाँ, that is cutaneous, correct, very good, शाबाश. मिस बोलती है मान्या पूछ रही नोट्स भेजते हुए, मैं तो इधर कुछ पूछ ही नहीं, मेरा नाम क्यों लिया? देखा तो मान्या थी, दूसरी थी, तो मैं क्या कुछ पूछ रही है? मैं तो कुछ पूछ भी नहीं रही है. ओए मैडम, you're talking and your this thing mobile is mute. Who is this Manya or Manya, whatever? You just mute your phone. Whatever you have to chat, you can chat by your personal thing. Okay. So flatworm, as I've told you, it is showing the cutaneous. Very good. When we talk about the fishes, so fish में क्या होगा? It is by the what? Fish किससे करेगा? क्या बताया था मैंने? गिल्स को. ब्रैंकियल, शाबाश आकांक्षा, वेरी गुड बेटा. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. When we talk about the insects, then that will be tracheal respiration. Tracheal respiration. Insects में tracheal. और हम सभी में क्या होगा? By the pulmonary respiration. I can get the answer from the Khushi. Yes, many of the students are there. Simran. ठीक है, शाबाश to all of you. चलो, good. All are attentive. Now, when we talk about this scorpion, the diagram I've shown you just to show you how the book lungs look like. देखो, ऐसा book lung दिखता है, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो book lungs के बारे में. तो scorpions and spiders में book lung था, gills में gills was in limulus and pulmonary sac in case of the molluscans. चलो, again, when we talk about the gills in detail, so there are two types of gills again, external gills and internal gills. ये किसका फोटो दिख रहा है हमें? ये जो दिख रहा है ना, ये टैडपोल है, यही फ्रॉक का बच्चा है, दैट इज टैडपोल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके गिल्स बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं. तो जब गिल्स बॉडी के बाहर होंगे तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल गिल्स. जब बॉडी के अंदर गिल्स होगा, जैसे कि हम लॉबस्टर्स में देख पाते हैं, कोई भी फिशेस वगैरह में, दैट इज इंटरनल गिल्स. हाँ, रैबिट्स वगैरह के अंदर हम लंग्स देख पाएंगे एंड ट्रेकिया इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स. ठीक है. नाउ let us begin with our topic in detail now. Human respiratory system. So just trace the cursor where I am moving the cursor. So our respiratory system starts with the nostril. Nostril से start होगा, फिर कहाँ जाएगा? nostril का मतलब क्या होता है? ये जो होल हमें नजर आ रहा है, ये जो नाक का होल है, वहाँ जहाँ से जो हम टच कर पाते हैं, that is called as a nostril. ठीक है. अब नॉस्ट्रिल से अंदर एक चेम्बर है जिसको हम नेजल कैविटी बोल सकते हैं या फिर नेजल चेम्बर बोल सकते हैं. तो ये जो नॉस्ट्रिल है वो कहाँ ओपन होता है? नेजल कैविटी और नेजल चेम्बर में. फिर वहां से एयर कहाँ जाएगा? फैरिंग्स में. फैरिंग्स से कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में. लैरिंग्स में. फ्रॉम फैरिंग्स इट विल गो टू द लैरिंग्स. फ्रॉम लैरिंग्स इट विल गो टू दिस ब्लू पार्ट. दिस ब्लू पार्ट इज नथिंग बट दिस ट्रेकिया. ठीक है. अब ट्रेकिया आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो जब ट्रेकिया डिवाइड होता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रोंकाई. जब ट्रेकिया डिवाइड होगा तो हम उसे बोलेंगे ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई will divide into primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. और ये सब चीजें हमें कहाँ नजर आएगी? All these things we can see inside the lungs. मतलब क्या? जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है और ये जो ब्रोंकाई है वो वापस डिवाइड हो रहा है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. पर ये सारे डिवीजन हमें कहाँ नजर आएगा? लंग्स के अंदर नजर आएगा. ठीक है. चलो, आई विल शो यू हाउ इट इज. सो देखो, ये आपने अभी ट्रेकिया देखा. ट्रेकिया ये देखो डिवाइड हुआ. अब ये लंग्स के अंदर का फोटो दिख रहा है हमें, लंग्स के अंदर का फोटो. तो आप देख सकते हो कैसे ट्री के जैसा, ट्री विथ हेवी ब्रांचेस नजर आ रहा है. तो व्हाट आर दैट ब्रांचेस? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंका.
और ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंड अप होगा, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये साइड का जो फोटो है आप इसमें देख सकते हो कि अपना लंग्स जो है इट इज बीन प्रोटेक्टेड विद दिस रिब केज. Yes, so I hope you can understand the thing, and this part, last part, which is supporting the lungs is called as the diaphragm. So our lungs is supported by this muscular septum. Muscle का septum, septum का मतलब मैंने क्या बताया है? Partition. So ये muscle का septum हमें नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं diaphragm. ठीक है, तो I hope you can imagine the things. So ये अपना ये lungs है with the branchings of bronchi. These are the rib cages and this is the diaphragm. ठीक है, चलो. Now let us learn which has been given the thing which I've written on the screen is given in your textbook. So our respiratory system is divided into upper and lower. Upper में क्या क्या आता है? External layer, nasal cavity और nasal chamber, internal layers and the pharynx. Whereas lower में क्या क्या आ रहा है? Larynx, जिसको हम voice box बोलते हैं या फिर sound box भी बोल सकते हो, trachea, bronchi, bronchioles and the lung. So let us learn all these things in detail now. External layers, अभी just मैंने आपको बताया, जो आप होल फील कर सकते हो अपने नोज पे, उसको हम बोलेंगे external layers. So opening of nose through which air is been exchanged or to and fro of air can take place. What is internal layer? अभी मैंने आपको देखो डायग्राम में बताया था कि ये जो इंटरनल लेयर होगा, अभी यहाँ पे भी एक होल होना चाहिए ना, जो अपने फायरिंग्स में ओपन होता होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल लेयर्स, तो विच ओपन्स इनटू द फायरिंग्स. नेजल कैविटी या चेम्बर क्या है? चेम्बर का मतलब क्या होता है? गुफा. यस, तो गुफा कहाँ पर है? जिसमें आप जब ज्यादा टेंशन में रहते हो या फिर ये रहते हो तो बस you put your finger in the nasal chamber and remove your mucus. Yes, so nasal cavity or nasal chamber is a space between the external layer and the internal layer. Yes, it is divided into compartments, right and left compartments, by the nasal chamber called as the mesodermoid cartilage. Again, very important question for the board exam, as well as if those who are interested in giving NEET exam, it is very important. ठीक है, सो क्या बताया मैंने? ये जो नेजल कैविटी और चेम्बर है वो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइडेड है. किसके कारण डिवाइडेड है? बिकॉज ऑफ दिस mesodermoid cartilage. Please show the previous page. You want to see the diagram? This page, which page beta? You want to see the diagram or what? Acha. There is one more thing which has been given in your textbook about the rhinoplasty. What is this rhinoplasty? Rhinoplasty is a surgery of nose. Surgery of nose is called as the rhinoplasty. तो सर्जरी क्यों की जा रही है? आइदर टू चेंज द शेप ऑफ द नोज, जैसे देखो आप इसका नोज टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा कर दिया गया. सो आइदर टू चेंज द शेप ऑफ द नोज और टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग प्रोसेस. अगर समझो किसी के नोज से ब्रीदिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है या फिर किसी का कार्टिलेज ज्यादा बड़ा है, तो उस वक्त भी ये राइनोप्लास्टी किया जा सकता है. सो राइनोप्लास्टी इज डन either to change the appearance of nose or improving the breathing process or both, या फिर दोनों चीजों के लिए भी किया जा सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना अभी वापस नेजल चेम्बर में आते हैं. तो ये जो है ये पूरा पार्ट आप देख सकते हो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये जो तीनों पार्ट आपको देख सक रहे हो, ये सब क्या है? नेजल चेम्बर के अंदर आता है या नेजल कैविटी में आता है. दिस इज अ साइड व्यू. नाउ सबसे पहला आता है वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा छोटा हेयर. सो इन द वेस्टिब्यूल रीजन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेयर एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन. क्या काम कर रहा है ये हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन?
हाँ, हेयर क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और म्यूकस भी क्या करेगा, ट्रैप करेगा एयर पार्टिकल्स को, या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको ट्रैप करेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, ये जो पूरा रेड कलर का आप देख सकते हो, रेड और रेडिश कलर का, दिस इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। Now it is again lined by the mucous membrane. पहले ये चीज अच्छे से समझ लो कि अपना पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि हमने पहले फीचर में पढ़ा था इट शुड बी मॉइस्ट, तो मॉइस्ट रखने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, तो अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम म्यूकस की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका काम कुछ बदल जाएगा। इट इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस इट इज हाईली वैस्कुलर। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट, इट एक्ट एज अ एयर कंडीशनर। अब ये क्या है, एयर कंडीशनर मतलब एसी का काम कर रहा है, मतलब ठंडा कर रहा है। Whenever you talk about air conditioner तो आपको सिर्फ ठंडी हवा ही नजर आती है ना, you can feel only the ठंडी हवा, but air conditioner का मीनिंग क्या होता है, regulating the air, regulating the air is called as air conditioner। तो अपने रेस्पिरेटरी पार्ट कैसे रेगुलेट करता है एयर को, अब देखो मैं आपको दो कंडीशन बताती हूँ तो आप समझ जाओगे उससे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत ही राजस्थान एरिया में गए हो, बहुत ही हॉट एरिया में गए हो, अब वहां का जो एयर है वो बहुत ही गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस वक्त क्या होगा कि अपना जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट किया जाएगा। क्यों ज्यादा सिक्रेट किया जाएगा, क्योंकि इतना गर्म अगर एयर हम अंदर लेंगे तो अपना जो ब्रोंकाई है, जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स है, इतने गर्मी से वो डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट किया जाएगा। अब म्यूकस सिक्रेट होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस हॉट हेयर इवापोरेशन विल टेक प्लेस, और इवापोरेशन होने की वजह से यू नो दैट जब भी इवापोरेशन होता है तो कूलिंग होता है, तो वो जो गरम एयर हमने इनहेल किया था अब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, या फिर इतना हो जाएगा जिससे कि अपने अंदर के सिस्टम को डैमेज न पहुंच सके। ये तो हो गई गर्मी की, हॉट एयर की। इसका ही अपोजिट देखो कि आप एकदम ही ठंडे इलाके में चले गए और बहुत ही ठंडा ठंडा एयर अगर आप इनहेल कर रहे हो तो इतना ठंडा एयर विल ऑल्सो डैमेज योर सिस्टम इनसाइड। सो उससे बचने के लिए ये जो हाईली वैस्कुलर पार्ट है ना वो काम करेगा। जब हम ज्यादा ठंडा एयर को इनहेल करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई अपने रेस्पिरेटरी एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो वहां पे व्हाट हीट विल बी जनरेटेड, एंड हीट जनरेट होने की वजह से जो एकदम ठंडा ठंडा एयर हमने इनहेल किया था वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, जिससे कि अंदर का सिस्टम अगेन डैमेज नहीं होगा। तो ऐसे इस चीजों को हम बोलते हैं एयर कंडीशनर और द रेगुलेटर्स। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एयर। नाउ the last part which you can see over here in blue color, that is the olfactory region। नाम से ही पता चल रहा है olfactory region is a sensory chamber which is lined by the olfactory epithelium, and जब भी olfactory आएगा तो आएगा sense of smell। ठीक है, चलो अब हम फेरिंग्स पे चलते हैं। अब ये जो अपना चेम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन हुआ। अभी अपना हमने क्या देखा, ट्रेस करते जाओ, मैंने क्या बोला था, अपना इंटरनल लेयर्स ओपन्स इनटू फेरिंग्स। तो चलो अब हम फेरिंग्स की तरफ चलते हैं। तो फेरिंग्स को हम जनरली नॉर्मली थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट। Now the uppermost part is called as a nasopharynx. The uppermost part of the pharynx is called as the nasopharynx. You can see in the diagram very clearly, which will lead into the oropharynx. In between naso and oropharynx, इन दोनों के बीच में, now again when we see the side view हम इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे, but इन दोनों के बीच में क्या present है, laryngopharynx present है। It's so the laryngopharynx का position क्या है, it is present between the naso and the oropharynx। अच्छा, अब ये ओरोफैरिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो नाम से ही अगेन पता चल रहा है ये ओरोफैरिंग्स ही है जो कॉमन है बिटवीन द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, दिस इज द कॉमन पैसेज, ओरोफैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर।
Very clear. And laryngopharynx is present between naso and the oropharynx. ठीक है. अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि में टॉन्सिल्स होते हैं. यस, तो टॉन्सिल्स तो होते ही हैं, पर आपके क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने टॉन्सिल्स होते हैं, तो उसका आंसर मैं ही आपको बता दे रही हूँ. देयर आर 4 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट, 4 सेट्स. अब आपके लेवल में आपको सिर्फ इतना ही जानना है, बट जिनको नीट का एग्जाम देना है, जो लोग इंटरेस्टेड है फॉर गिविंग द नीट एग्जाम, यू कैन जॉट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो. ठीक है. सो व्हाट आर दैट 4 टॉन्सिल्स? They are pharyngeal tonsils, tubal tonsils, palatine tonsils, and the lingual tonsils. ठीक है. What is the function of tonsils? Tonsils is a type of a lymph node and it helps in Mayuresh is telling that कि Miss while seeing दो दिखता है. What दो दिखता है? आपको स्लाइड दो दिख रहा है? Mayuresh, please answer my question. What you are not able? क्या आपको दो दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है. Till he is answering, let us come back to the point once again. Tonsils का काम क्या होता है? Tonsils is helping in immunity system. ठीक है. They are helping in immunity system. क्या प्रैक्टिकली में दो दिखता है बेटा? मयूरेश, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट दो दिखता है? आई एम नॉट गेटिंग. चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. ठीक है. लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, इट इज व्हेन वी टॉक अबाउट अ वॉइस बॉक्स, सो इट शुड बी हाउ larynx or the voice box or the sound box, it should be hollow tubular structure, because it's a sound box. Again, it is supported by the cartilage plates. You can see that I have circled this cartilage का नाम, thyroid cartilage and the cricoid cartilage. Then ये again आपको नाम नहीं जानना था, but फिर भी मैंने आपको, जिसको नीट में इंटरेस्टेड है वो लोग नाम जॉट डाउन कर सकते हैं, but बाकी के बच्चे they can just only note down it is made up of cartilage plates. Then it extends from laryngopharynx and hyoid bone to the trachea. Now you can clearly see this hyoid bone. In 11th standard, when I've taught you about the skeleton, I've told you hyoid bone is also called as a tongue bone to which our tongue has been attached. So ये जो hyoid bone से extend होता है, laryngopharynx and hyoid bone to the trachea. Very clear. Now it opens into the laryngopharynx through the glottis. एक यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस. ठीक है. ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर एक फ्लैप आप देख सकते हो, रेड कलर का फ्लैप. दिस इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस. अच्छा, अब मैंने एपिग्लॉटिस को क्या बोला? मैंने फ्लैप बोला, जबकि मैंने ग्लॉटिस को क्या बोला? ओपनिंग बोला. समझ के लो, ग्लॉटिस एक ओपनिंग है और उसके ऊपर एक फ्लैप है जिसको मैंने क्या बोला? एपिग्लॉटिस बोला. ये एपिग्लॉटिस क्या काम करेगा? इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो जब हम खाना खाएंगे तो ये जो फ्लैप है, यू कैन सी माय वीडियो, आई एम शोइंग यू विद माय हैंड. सो ये जो फ्लैप है वो अप एंड डाउन होता है. जो जैसे हमने अपने खाना खाया तो ये फ्लैप बंद हो जाएगा और फूड बराबर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा. ये बाजू के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो नहीं जाने देगा. These points I've already taught you when I've taught you about the digestive system. Now, ये दोनों चीज आपने digestive system में already पढ़ा हुआ है. Then अपना जो larynx है उसमें elastic folds present है जिसको हम vocal cords बोलेंगे, जिससे कि sound produce होता है. ठीक है. Now, in case of when we talk more detail about the larynx, so larynx is a voice box, but male के अंदर, male children के अंदर at the time of puberty, ये जो है larynx जो है वो काफी बड़ा नजर आने लगता है, and that is called as the Adam's apple. So larynx or the voice box is smaller in case of female and bigger in case of males, which is called as the Adam's apple. So जो वॉइस के अंदर नेक रीजन में जो आउटग्रोथ नजर आ रहा है, that is nothing but this Adam's apple. Now again cartilage की अभी मैंने आपको बात की थी, तो there are different 4 types of cartilage. They are thyroid cartilage जो सबसे बड़ा है,
क्रिकॉइड कार्टिलेज वो भी एक है, जबकि आर्टिनॉइड जो कार्टिलेज है दे आर 2 इन नंबर. सो ऐसे हो गया 4 कार्टिलेज. फिर आता है बात करने के लिए कि लैरिंग्स में हम बात कैसे कर पा रहे हैं. तो ये जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसके अंदर 2 इलास्टिक फ्लैप्स आर बीन प्रेजेंट. दिस इलास्टिक फ्लैप्स ओपन्स एंड क्लोजेस. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये ग्लॉटिस का जो माउथ है वो बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, जब जिससे कि हम वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कर पाते हैं. पर जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, उस वक्त ग्लॉटिस का जो माउथ है वो नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगा एंड वी कैन प्रोड्यूस द साउंड. So again a question comes, how we can produce sound? Either by inhalation or exhalation. So answer should be during exhalation we can produce sound. So again the same diagram over here, you can see the things. You can see epiglottis, hyoid bone. You can see this cartilage just now I've explained. ठीक है? And the trachea and all. देखो आप ये देख सकते हो, this is the trachea. ये फ्रंट व्यू है, पर वही ट्रेकिया को जब आप पीछे से देखोगे, देखो आप यहाँ पे एक बार देख के लो, वही ट्रेकिया को जब आप पीछे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्टिलेज का रिंग है ये पूरा नहीं है, अधूरा है, पूरी तरह से बंद नहीं कर रहा है इसको. ठीक है, कैन यू सी द कर्सर नाउ. चलो अब हम ट्रेकिया के बारे में जानते हैं. नाउ ट्रेकिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो ट्रेकिया इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप. जो आप बचपन में पढ़ते आए हो, विंड पाइप. कितना बड़ा होता है ट्रेकिया? इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड यू, इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग. मतलब क्या सी शेप? मतलब क्या, ये कार्टिलेज रिंग पूरा नहीं है, सिर्फ अधूरा है. आगे से पूरा दिख रहा है पर पीछे से पूरा बंद नहीं है कार्टिलेज का रिंग, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग. कितने रिंग्स होते हैं? 16 to 20 रिंग्स आर प्रेजेंट. Again, it is lined by ciliated epithelium, mucus gland and pseudostratified epithelium. ठीक है. Now, ये जो trachea है वो divide होता है into bronchi. So trachea divides into left and right primary bronchi. याद रखो, trachea divides into primary bronchi. फिर primary bronchi divides into secondary bronchi. फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू द टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है, ये सब चीजें किस चीज से सपोर्टेड है? दे आर ऑल सपोर्टेड विद द सी शेप कार्टिलेज रिंग. बट जब हम जब हम टर्शियरी ब्रोंकाई की बात करेंगे तो टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स एंड अप इनटू द एल्वियोलाई. सो टेल मी द सीक्वेंस नाउ. सभी बच्चे मुझे सीक्वेंस बताएंगे. ट्रेकिया इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से आएगा टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई से आएगा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स विल एंड अप इनटू द एल्वियोलाई. ठीक है, चलो यू कैन सी नाउ द डायग्राम आल्सो. ये देखो आप ये देख सकते हो, ट्रेकिया है. ये वाला पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा स्लाइट ग्रीन कलर का, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई. वो वापस डिवाइड हो रहा है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. फिर येलो कलर का टर्शियरी ब्रोंकाई, और जो रेड कलर का वापस दिख रहा है दे आर द ब्रोंकियोल्स. और यहाँ पे आपको एल्वियोलाई नहीं नजर आ रहा है, बट ब्रोंकियोल्स विल एंड अप इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एल्वियोलाई. ठीक है, so these are the alveoli, grape like structures. grape देखो bronchioles से आता है ये grape like structure called as the alveoli. These are the grapes like structure. So when we talk about the alveoli, it is a structural and functional unit of lungs. Structural and functional unit क्यों बोल रहे हैं? Because these are the structure where exchange of gas is taking place. कितने होते हैं? There are about 700 millions of alveoli present in our lungs, which are lined by squamous epithelium. क्यों squamous epithelium है? क्योंकि अगेन हमने फीचर में पढ़ा था it should be thin. तो सबसे थिन वाला एपिथेलियम कौन सा है? squamous epithelium है. तो ये जो alveoli है it is lined by the squamous epithelium. Then it is surrounded by a network of capillaries. You can see that it is highly vascular.
हो गया ना, यहाँ पे भी वो फीचर सेटिस्फाई, हाईली वैस्कुलर, रिच इन ब्लड कैपिलरीज। चलो कम बैक टू अवर लंग्स नाउ। लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज प्रेजेंट इन अवर thoracic chamber or the thoracic cavity and it is resting on over here as the diaphragm. It is resting on diaphragm. चलो अगर हम राइट लंग्स की बात करेंगे, देखो मैंने आपको पहले भी बच्चों लोग बताया है किडनी जब पढ़ाते वक्त कि आपके राइट हैंड साइड पे लेफ्ट मार्किंग होगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे राइट मार्किंग होगा। तो ये जो मेरा कर्सर है, दिस इज माय राइट हैंड साइड, पर मैंने यहाँ पे क्या मार्किंग किया है? लेफ्ट लंग। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में राइट पार्ट मार्क किया है। तो ये आपको याद रखना है फॉर हार्ट का डायग्राम, फॉर लंग्स का डायग्राम, फॉर किडनी का डायग्राम ना। तो पहले अगर हम लोब्स की बात करेंगे तो आप पहले देखो राइट साइड में मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है। अपना जो राइट लंग्स है इट इज 3 lobes, 1, 2 and 3, whereas the left lung is only 2 lobes, ठीक है। So right lung is 3 lobes, left lung is 2 lobes. Then अपना जो लंग है इट इज बिन कवर्ड बाय द कवरिंग, यस इट इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन। तो कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को कवरिंग होता है तो इसको भी डबल लेयर का कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा। डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज प्ल्यूरा। अगर वो डबल लेयर है तो उसमें आउटर और इनर होना चाहिए। तो अगेन आउटर लेयर को हम बोलेंगे पैराइटल प्ल्यूरा और अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे विसरल प्ल्यूरा। अच्छा, अब ये पैराइटल और विसरल के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है और वो स्पेस में क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड भरा है। एंड दिस प्लूरल फ्लूइड इज गोइंग टू एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड इट विल प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। समझ में आ गया ना? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज, देखो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, देखो कर्सर को ये करो, कर्सर को ट्रेस करो प्लीज, मैं कहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक डिप्रेशन नजर आ रहा है आपको, ये डिप्रेशन को बोला जाता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। क्यों कार्डियक नॉच बोला जा रहा है? क्योंकि आप अंदर देख सकते हो, कौन है अंदर? हार्ट है अंदर। समझ में आ गया? तो जब मैं आपको हार्ट बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 lungs इन अ स्पेस, और ये स्पेस को मैं तब नाम आपको बताऊंगी, इट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। तो अभी भी ये याद रखो पोजीशन, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है जहां पे अपना हार्ट प्रेजेंट है, इस स्पेस को बोला जाता है मीडियास्टिनम। और अपना लेफ्ट साइड का लंग क्यों इतना छोटा हो गया है? क्योंकि वी नो दैट आवर हार्ट का जो टिल्ट है, टिल्ट इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया आपको? ओके, now again the air passage for you all to understand. So it will start from the nostril, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, प्राइम। फिर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैकिया से यहाँ पे वाले डायग्राम में आओ, प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंका, टर्शियरी ब्रोंका एंड देन इट विल एंड अप इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, this is with the diagram to show you the difference between primary, secondary and the tertiary bronchi. डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? जिस इट इज अ मस्क्यूलर सेप्टम, सेप्टम मींस पार्टीशन, जिसके ऊपर अपना लंग्स रेस्ट करता है। इट इज सेपरेटिंग अवर थोरैसिक एंड द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन और थोरैसिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है ये पार्टीशन। अच्छा, ये जो डायफ्राम है इसका शेप चेंज होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तब इसका शेप चेंज होता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब ये डोम शेप का हो जाएगा, और जब हम रिलैक्सेशन करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। कैसे होगा? वी विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। समझ में आ गया आप सबको? ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस लर्न मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। रेस्पिरेशन में देयर आर 4 प्रोसेस। तो आज हम ब्रीदिंग सिर्फ समझ के वी विल स्टॉप, ब्रीदिंग समझ के हम स्टॉप करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, अगेन नोट डाउन, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। जब भी मैं एक्टिव प्रोसेस बोलूंगी मतलब देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगता है। यस, और एक्सपिरेशन जिसको आप एक्सहेलेशन भी बोलते हो, वो पैसिव प्रोसेस है, मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। ठीक है, सो ब्रीदिंग पूरे रेस्पिरेशन में 4 प्रोसेस है जिसका हम आज सिर्फ पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, इनहेलेशन एक्टिव है, एक्सहेलेशन पैसिव है। अच्छा, अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझते वक्त आपको ये चीजें बार बार आएगी। इंटरकोस्टल मसल,
So I wanted you all to see the difference between the what is this intercostal muscle. Again मैंने आपको पहले भी समझाया है, बायो में इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटरकोस्टल मसल मतलब रिब्स के बीच में, देखो ये रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल में भी दो टाइप है, जो अंदर की तरफ है, ये कौन सा बोन है, स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन के पास आप जो देख सकते हो डार्क पिंक कलर का, दे आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और जो बाहर की तरफ है, जो लाइट पिंक में आप देख सकते हो, दे आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आया? जो अंदर की साइड है इंटरनल इंटरकोस्टल, और जो बाहर के साइड है रिब्स में, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों समझाया, ये अब आपको इसका कारण समझ में आएगा। सो देखो, इनहेलेशन में, इनहेलेशन के वक्त अपना ये अच्छे से लिख लो, जॉट डाउन कर लो, अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अंदर वाला मसल रिलैक्स करता है और बाहर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं मसल की बात कर रही हूँ। बाहर का अंदर का इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा और बाहर का इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस now what will happen, the ribs will move upward and outward, upward and outward, जिसके कारण the diaphragm will become flat. You can see the shape of the diaphragm, it has become flat. Now because of all this reason, क्योंकि ribs अपना ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि अपना diaphragm flat हो गया, तो thoracic का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आप समझ पा रहे हो, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और कैपेसिटी जब इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो व्हेनेवर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस, इट इज इनडायरेक्टली व्हाट यू से, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, और जब भी प्रेशर डिक्रीज होगा, इनहेलेशन विल टेक्स प्लेस, मींस वी विल ब्रीथ इन एंड इट्स अ एक्टिव प्रोसेस। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सहेलेशन में होगा। एक्सहेलेशन के वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिब्स विल मूव डाउन एंड इन, diaphragm will relax and it will become dome shape. You can see the shape of the diaphragm, ये dome shape का हो गया है। अच्छा, अब ये dome shape होने के वजह से volume will decrease, क्योंकि ये डोम शेप हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, और जब भी वॉल्यूम कम होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया, एयर हमने बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन एंड इट्स अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है? सो नाउ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम एट होम, you can do this experiment with a simple bottle, you can put a balloon over here। आप देख सकते हो, जब भी आप ऐसा फ्लैट करोगे तो वो बलून अपने आप ब्लो हो जाएगा, और जब उसको रिलीज करोगे तो बलून ये हो जाएगा। तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का। यू कैन यूज दिस बॉटल एंड विद अ स्ट्रॉ यू कैन यूज डू दिस। सो अगेन अ डिफरेंस एट अ स्ट्रेच to show you all inhalation as well as exhalation. ठीक है? Now the last slide which I am going to show you today is the respiratory cycle. Respiratory cycle means one inhalation and one exhalation is equal to respiratory cycle. So it is inspiration and expiration called as the respiratory cycle. How much is the normal breathing? A normal human being breathes about 12 to 16 times per minute. And you can see in the photo, you can see the spirometer. It is also called as a respirometer, which is used to measure the respiratory rate. So this can also be a 1 mark question or the MCQ question in the board exam. ठीक है? ये तीनों भी जो points है, ये तीनों भी points are important for you all to study for the board exam. Now today, you have textbook in your mobile phones. So I've taught you this much today. इतना पार्ट मैंने आपको आज पढ़ाया हुआ है, ठीक है? And I hope आप next lecture में, tomorrow you are having my lecture and you know me very well. आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तो those who are not able to answer my question, I can remove you from here. ठीक है? So
आपको पढ़ के रखना है अपना टेक्स्ट बुक 156 पेज नंबर का। मैंने आपको फोटो भी भेजा है जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है और इतना आई एम एक्सपेक्टेबल टू लर्न एंड कीप फॉर टुमारो। समझ में आया है सबको? यस। So again it's 11 o'clock and just read and come this much. अच्छा, आकांक्षा इज आस्किंग में टॉन्सिल का फंक्शन बताओ। सो टॉन्सिल बेटा इट्स अ लिम्फ नोड। आप वैसे भी टॉन्सिल अभी मैं आपका सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी ना तब वहां पे डिटेल में बताऊंगी। टॉन्सिल्स आर मेंट दे आर हेल्पिंग इन अवर इम्यूनिटी सिस्टम। अपने इम्यूनिटी सिस्टम में मदद करते हैं वो। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस। सर्कुलेशन लेसन में आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ोगे, उसके अंदर आप टॉन्सिल्स डिटेल में पढ़ोगे वैसे भी, ठीक है। बट अभी के लिए इतना जानो कि टॉन्सिल्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस। दे आर हेल्पिंग इन अवर बूस्टिंग अवर इम्यूनिटी सिस्टम। आई होप यू गॉट द आंसर आकांक्षा। ओके, अभी तक मैंने IRV पढ़ाया क्या? अभय शर्मा is asking what is IRV. Have I taught you IRV today? जितना पढ़ाया पहले उसका आंसर्स दो। वो IRV कल पढ़ाऊंगी मैं। Yes, so just go through the slides once again. एक बार देख लो what we have learned today. So we have learned the distinguish today. Then we have learned the definition. Then we have seen in plants stomata and lenticles. Then we have seen the respiratory surface should have these 4 features. Different respiratory organs we have seen. In human, we have seen about the external layer, internal layer, nasal cavity. In between, we have learned a short thing about rhinoplasty. Then we have seen about the nasal chamber showing 3 different regions: pharynx, larynx, trachea. Trachea is dividing into left and right primary bronchi, dividing into secondary, tertiary bronchi, which is again dividing into bronchioles, leading into alveoli. So alveoli is thin because of squamous epithelium and rich in blood supply. We have talked about the lungs. We have seen the difference between the left and the right lungs. We have seen about the covering called as the pleura. Pleura being a double layer having outer and inner, parietal and visceral with a pleural fluid. Then we have seen the air passage. We have talked about the diaphragm. In mechanism of respiration, in this chapter you have to learn all these 4 processes in detail, out of which breathing I have completed today. So breathing is showing 2 processes, inhalation and exhalation. Inhalation is active, exhalation is passive. Before learning about the inhalation and exhalation, I have shown you the position of internal and external intercostal muscles, so that when you go through this chart, you are going to imagine what is internal and external intercostal muscle. When during inhalation, volume increases and pressure decreases. The opposite thing happens during exhalation. During exhalation, volume decreases and the pressure increases. Okay? And lastly, we have talked about the respiratory cycle. We have talked about the normal breathing, and we have seen about the respirometer, which is an instrument to measure the respiratory rate. With that, I'm ending today's lecture. Tomorrow we will be learning in detail about the external respiration, internal respiration, and the cellular respiration. Very clear?